Welcome to the Maluka Academy. Myself Anil Kumar Skija, your mathematics teacher. Today I will teach you triangles, congruency of triangles for class 9th. Topic is triangles. So yesterday we started with the congruency of triangles, and in which we have studied that how the triangles can be made congruent using the five creations which we did, that is triple S, side side side, side angle side, then ASA or S, we can say AAS, then we have got RHS. So these are the five creations which did to make the triangles congruent. So we start with the further more questions to make the concept more understandable. So we are given diagonal AC of a quadrilateral ABCD. ABCD is given A, B, C, D and diagonal AC. This is given to us, and what we have to do, these are the angles, 1, this is 2, this is 3, this is 4, bisects the angle A and C. So these are bisected, means these are equal, and what we need to show that, prove करना है हमें AB is equal to AD, and secondly CB is equal to CD. So हमें ये पार्ट प्रूव करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. कौन कौन से ट्रायंगल्स है, ए बी सी और ए डी सी. हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी. ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमारा रीज़न आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल हैं. फर्स्ट में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेकंड में लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो इसमें हमारे पास क्या रीजन आएगा, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स बोथ एंगल A एंड C. सो इनके लिए रीजन आ जाएगा सिंस डायगोनल AC bisects both angle A and angle C. So that is why we have seen that this angle is divided into two parts which are equal, 1 and 2 are equal, and then here 3 and 4 are equal. Then third is we have got AC is equal to AC. So for these we have got same reason, AC is equal to AC common for 1 and 2, and this is for 3, common to both triangles. Then fourth statement we state that triangle ABC is congruent to ADC. So we can see that ABC, ADC, these are congruent triangles. Why? Because by which creation? By two angles one side, ASA creation, and from steps 1 to 3.
एक, दो और तीन स्टेप में हमने क्या शो किया है, दो तो हमारे एंगल इक्वल है और एक हमारी साइड इक्वल है। सो जब एंगल और साइड इक्वल होगी तो क्या हो गया, हमारे जो ए एस ए से ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो इसमें हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हम, लेकिन प्रूव क्या करना चाहते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पे देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी और ए डी, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी, और आगे क्या है, सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी एंड सी डी, सी बी इज इक्वल टू सी डी। We can write this as by CP CT, that is corresponding parts of congruent triangles are equal. So these are corresponding parts of these two congruent triangles. So this proves our question. Then we move to the next part, but before that we will rub this part. The next question is, we are given this figure and given various triangles. So we start with second question is, AB is a line segment and P is its midpoint. So AB is line segment, P is its midpoint. So we can say P is midpoint of AB. This is given to us. Then what else we are given? D and E are the points on the same side of AB such that D यहाँ पे है और E यहाँ पे है। तो इसमें क्या हमें बोला गया है, such that BAD is equal to ABE, BAD. सो BAD ये एंगल हो गया, और दूसरा क्या है, ABE, ABE ये इक्वल हैं। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, एंड EPA, EPA इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EPA इक्वल टू DPB, DPB ये इसके इक्वल है, DPB। तो इसमें शो क्या करना है हमने, टू शो, फर्स्ट तो इसने हमने शो करना है DAP, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है किसके, DAP होगा EPB के, EBP। सेकंड पार्ट हमने क्या शो करना है, AD और BE को इक्वल प्रूव करना है। सो सेकंड पार्ट तो सीधे ही हो जाएगा बाय CPCT, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या शो करना है, ये हमने शो करना है, दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, तो एक हमारा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न। सो फर्स्ट क्या है,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं हमने? इन ट्रायंगल, यही ट्रायंगल जो प्रूव करने हैं, DAP एंड ट्रायंगल EPB। DAP एंड EBP। सो इसमें A और B इक्वल है, ये गिवन है हमें। फर्स्ट, सेकंड में क्या है? ये एंगल हमें EPA इक्वल टू एंगल EPA DPB के बराबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं दोनों में, EPD, एडिंग EPD टू बोथ साइड्स। तो इस ये तो हमें गिवन है। सो अब इससे क्या होगा, जब ये एंगल दोनों में ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो इससे क्या हो जाएगा? EPA और EPD देखो, EPA EPD ये बन जाएगा सारा एंगल। ये वाला एंगल हमने ऐड किया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? DPA। किसके इक्वल हो गया ये? EPB। DPA EPB। तो ये हमारा सेकंड हो गया। और थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड में है PA इज इक्वल टू PB। ये भी गिवन है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। PAB का मिड पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है शुरू में, ये भी गिवन है। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1, 2, 3। फोर्थ क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? EPB के। ये किस क्रिएशन से हुआ? हम दे सकते हैं दो दो एंगल्स हैं और एक साइड है, सो ये हो जाएगा बाय ASA रूल। सो यही दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड है, इसलिए ये ASA रूल से हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है? AD, ये AD है, ये BE है, CPCT से हो गया। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE, किससे हो गया ये? बाय CPCT। सो यही हमने प्रूव करना था इसमें। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। सो इसमें हमारे पास क्या है? AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है और इसमें AX एंड BY आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB। AX और BY ये इक्वल हैं आपस में, ये इस तरह से आएगा, तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉइंट P पे कट कर रहा है, ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या शो करना है? सच दैट AX इज पैरेलल टू BY, ये दोनों लाइंस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं।
दिस इज गिवन टू अस। तो अब इसमें हमने क्या करना है, एक तो करना है ए पी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी वाई, और सेकेंडली क्या करना है, ए बी एंड एक्स वाई बाइसेक्ट ईच अदर। सो बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको हमने करने के लिए क्या करना है, पहले कॉन्ग्रुएंसी करनी है, उसके बाद सीपीसीटी से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। सो जस्ट लुक हेयर, सो आई विल गिव यू द आइडिया हाउ यू कैन डू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AX is parallel to BY, this is given to us, this is the parallel lines, these are equal, and we know that when lines are parallel, we did in the last chapter, in the chapter of lines and angle, when two lines are parallel and transversal cut sets, it forms the alternate anterior angles which are equal. So this one will be equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, and angle 3 is equal to angle 4. So इनके लिए रीजन क्या है, बीइंग alternate anterior angles are equal, क्योंकि ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वल हैं, और साथ में हमें क्या दिया है, ये वाला दिया है, ये दोनों भी इक्वल हैं, AX इज इक्वल टू BY, ये गिवन है हमें। अब इन तीनों में से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट APX, ये ट्रायंगल APX किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा, ये y है, PBY BPY कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPY। सो दिस इज इक्वल, सो इट मीन्स किस रूल से हो गया ये, ASA से, दो एंगल्स हैं एंड इंक्लूडेड साइड है, सो बाय ASA क्रिएशन। अब हमने क्या शो करना है, AB और XY बाइसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, सो इसमें हम ये भी कह सकते हैं AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB आएगा, और सेकेंडली क्या है, PX इज इक्वल टू PY, ये क्यों आया, बाय CPCT। अब ये देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, AP और BP इक्वल है, ये साइड इक्वल है इसके, और ये साइड इसके इक्वल है, इट मीन्स क्या है, दोनों आपस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन सेगमेंट्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं, AB और XY बाइसेक्ट ईच अदर, ये इनसे आ गया, इस स्टेप से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, हैंस प्रूफ। सो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम करना चाहते थे इसमें। सो इसको आगे करते हैं क्वेश्चंस को, फोर्थ क्वेश्चन को, बट बिफोर दैट वी विल रब दिस बोर्ड।
Then fourth question is, in triangle ABC, AD is the median and which is produced to AD is the median so triangle A B C, AD is the median means these two are equal. मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने की लाइन को हम मीडियन कहते हैं. सो वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो अब इसमें क्या है, बी एल एंड सी एम आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन. सो एक तो बी एल इसमें परपेंडिकुलर हो गया, ये इक्वल है परपेंडिकुलर्स. इक्वल नहीं है बी एल और सी एम. सी एम इस पे आएगा परपेंडिकुलर जो इसको आगे प्रोड्यूस किया हमने. सो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, ए डी प्रोड्यूस्ड. सो हमने इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल होने चाहिए. सो इसके लिए हम बहुत सा सिंपल सा काम करते हैं. सो पहले ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, बी एल डी इन ट्रायंगल बी एल डी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, सी डी एम. सी डी एम. ओके. सो इसमें एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया. कैसे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होगा. एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, ईच परपेंडिकुलर ईच इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये दोनों एंगल 90 के हैं. और अब हमारे पास क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी डी. बी डी इज इक्वल टू सी डी. दिस इज बी एल डी एंड सी एम डी. सी एम डी. और आगे हमारे पास क्या है, ये हमारा है बी डी इज इक्वल टू सी डी. बिकॉज ये हमें दिया हुआ है ए डी इज मीडियन. मीडियन ऑन बी सी. ए डी अगर मीडियन है बी सी पे तो ये दोनों पॉइंट्स को, दोनों पार्ट्स को सेम पार्ट में डिवाइड करेगा ना, लाइन को सेम पार्ट में डिवाइड करता है ये. सो अब यहाँ से क्या आ गया, दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई. तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ये 1 2 3 फ्रॉम 1 2 एंड 3 1 2 3 वी हैव ट्रायंगल बी एल डी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी एम डी बाय, ये कौन सा रूल है, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड बाय ए एस रूल. सो दिस इज सेम एज ए एस ए रूल, बट सिंस द साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन, सो वी राइट इट एज ए एस रूल. अब हमने क्या प्रूव करना है, बी एल और सी एम को इक्वल प्रूव करना है. सो यहाँ से हम दे सकते हैं बी एल इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी. हैंस प्रूव. यही हमने प्रूव करना था, ये वाला पार्ट प्रूव करना था, यही हमने शो कर दिया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज then fifth is this here, AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. फिफ्थ में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB
ये ए है, ये बी है, ए डी परपेंडिकुलर है और एक बी सी है। ये परपेंडिकुलर भी है और ये इक्वल भी हैं। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो ये लाइन अगर सी डी को हम ज्वाइन करते हैं तो हमने क्या प्रूव करना है? प्रूफ सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सो इसको अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो हम क्या करना चाहते हैं? सी डी और ए बी के दोनों के इक्वल पार्ट्स होंगे। ये पॉइंट बीच में हम ले लेते हैं। क्या पॉइंट दिया है यहाँ पे? ओ दिया है। तो हमने क्या शो करना है? एक तो पार्ट करना है ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, दूसरा क्या करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। मीन्स इन दोनों के लिए हम ये दो पार्ट शो करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं? ए ओ डी और बी ओ सी को हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल्स। ये प्रूफ यहाँ से हो गया। इन ट्रायंगल्स ए ओ सी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है हमें। सेकंड में क्या आएगा? बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी गिवन है। क्या गिवन है? इक्वल परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। सो ये हमें दिया है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब थर्ड में हम क्या लिखते हैं? एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। ये कैसे हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये भी हो गया। सब दो एंगल हो गए और एक साइड होगी, लेकिन दो एंगल्स अलग से हैं और साइड उनके बीच में इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? इफ वी सी द रूल इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट। क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये किस रूल से हो गया? बाय AAS रूल। अब हम इसको देख सकते हैं। सो फिफ्थ में क्या करेंगे? इधर करता हूं मैं। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? अब इसको लिख सकते हैं हम, इस ट्रायंगल में देख सकते हैं ये AO किसके बराबर होगा? BO के। ये कॉरस्पॉन्डिंग है। और दूसरा OD किसके बराबर होगा? OC के। ये किससे हो गया? बाय CP CT। सो हेंस हम जो प्रूव करना चाहते थे, क्या प्रूव करना चाहते थे? CD बाइसेक्ट्स AB। सो CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। सो ये दोनों प्रूव हो गए आपस में। सो वी कैन सी दैट देयर आर मोर क्रिएशंस, बट टुडे वी डिड द क्वेश्चंस ऑन SAS and AAS rule, so which we have done. So based upon this we have got more questions, so which we will continue in the coming lectures. So we can summarize the today's lecture. So what we did today, we today and yesterday we have learned what is the congruency of triangles, what are the various creations by which we can prove that the triangles are congruent. These are either all three sides of one triangle equal to three sides of other triangle, then the triangles are congruent by SSS rule, side side side. And when two angles and one side is there, it can be ASA or AAS, as we did the questions based on these two rules. Then
It can be side angle side also, means two sides and one angle. So this will be there, and then we have got RHS rule, so which we will be doing in the forthcoming lectures, which we will be doing in the next days. So I think you must be understanding all the concepts which we are, you must be following these concepts, and you will be doing these things. In case of any problem, just contact us. So thank you for listening a lesson. Thank you.